إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العلی العظیم. اور اپنا میں سمجھے پتہ نہیں کیا سمجھتا ہوں، مجھے خود بھی نہیں سمجھ آتی کہ میں نے ایک دن اپنی بات سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ ایک دن جب میں اپنے گھر میں بیٹھا تو وائف کے ساتھ میری بات ہوئی تھی. ڈاکٹر صاحب جنہوں نے کافی میری تعریف کی، آج صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. آپ بھی قابل تعریف ہے جس طرح سے آپ نے پورے بلوچستان کا بوجھ رجسٹریشن آفس کا آپ کے کندھوں پر ہے اور آپ کی ٹیم پر ہے. آپ کے ٹیم میں رحیم لیڈی صاحب، عنایت بزدار صاحب، محمود رین صاحب، آپ تمام دوستوں کا شکریہ کہ آپ نے جس طرح سے اس کنسلٹیشن کو آپ نے زبردست قسم کا جو سسٹم تھا اس کا رجسٹریشن کے حوالے سے اور ہر حوالے سے آپ کی جدوجہد اور محنتوں کو ہم لوگ نہیں بھولیں گے. انشاءاللہ سلام پیش کرتے ہیں. اور یہاں پر بیٹھے میرے ایڈوکیٹ جلیل صاحب، انور مشکور صاحب ہمارے تربت کے صدر ہے، اور اس کے علاوہ مختار صاحب، حنیف کاکڑ صاحب، اور پارٹی کے جتنے بھی سینئر قائدین ہیں، سیکٹری تعلیم ہماری میڈم سعدیہ، اور بالخصوص میں اس دن میں بھول گیا تھا، پتہ نہیں زیادہ پریشر تھا مجھ پر، کیا مسئلہ تھا جو کنسلٹیشن ہوا تھا. میڈم سائرہ بتول کا نام میرے ذہن سے نکلا ہوا تھا، لیکن آج میں اس پروگرام میں میڈم کا نام میں دوبارہ لوں گی. تو جس طرح سے میڈم سائرہ بتول اور ایوز صاحب اور میرے پارٹی کے جتنے بھی دوست ہیں ہزارہ ٹاؤن اور علمدار روڈ کے، جنہوں نے دن رات میرے ساتھ ناچیز کے ساتھ انہوں نے کام کیا اور مجھے ابھی تک بھی برداشت کر رہے ہیں، تو تمام دوستوں کا بہت شکریہ. میڈم فریدہ آپ کا بھی نام میں لینا چاہوں گی یہاں پر کہ آپ تشریف لائیں گے، بہت شکریہ. تو دوستو ٹائم کی کمی کی وجہ سے میں کچھ باتیں رکھنا چاہوں گا، پھر میرے پارٹی قائدین نے تفصیلاً آپ کو بلوچستان اور پاکستان کے معاملات پر جو ہے انشاءاللہ آپ کو سمجھائیں گے، آپ کے ساتھ بات کریں گے. تو محترم دوستو، جو ہمارا پارٹی کونسل سیشن تھا 7ویں، یہاں پر تو پاکستان میں بہت سی پارٹیاں ہیں، بہت سے لوگ ہیں، بہت سی لیڈران ہیں جو جمہوریت اور جمہوریت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کے پارٹی کے اندر نہ باہر جمہوریت نامی چیز کی اس طرح کہہ لیں کہ بالکل نہ ہونے کے برابر ہے. لیکن جو جمہوریت میں نے نیشنل پارٹی میں اپنی میری مختصر سی زندگی ہے ویسے ایک سیاسی ورکر کے، میں نے اس مرتبہ جو 4 دن جو ہمارا کنسلٹیشن کوئٹہ میں ہوا، جو انتہائی پروقار پروگرام تھا، آپ یقین کریں میں تو بالکل حیران ہو کر رہ گیا کہ لوگ جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اصل جمہوریت تو اس پارٹی کے اندر ہے، جس میں 4 دن انتہائی نظم و ضبط کا مظاہرہ ہوا. پارٹی ورکروں نے بات کی، تنقید برائے تعمیر والی بات کی، تمام معاملات پر بات کی. آپ یقین کریں جس خوبصورت انداز میں پارٹی کے الیکشن ہوئے، جو میری زندگی میں کم از کم میرے لیے ایک افتخار ہے. میں یہ سمجھتا ہوں، اور جس طرح سے آخری دن جو پارٹی کا الیکشن ہوتا ہے اس کے لیے میں نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرائے بیسد ممبر سینٹرل کمیٹی کے، جس طرح نے انہوں نے
पार्टी के मरकजी दोस्तों ने, मेरे कायदीन ने मुझ नाचीज को भी 152 वोट दिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाकई इस पार्टी में यहां पर कोई मसलक, जुबान या और कोई जो इलाकाई चीजें हैं वो बिल्कुल सिफर है, बिल्कुल जीरो है। इसमें हमारे लोगों ने, मेरे लोगों ने, बलूचिस्तान ने, पाकिस्तान ने मुझे भरपूर अंदाज से जो उन्होंने मुझे वोट दिया, मैं इस फोरम के तवज्जो से मैं तमाम दोस्तों का मैं भरपूर मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और इंशाअल्लाह ताला जिस अंदाज से उन्होंने मुझे कामयाब कराया और आज दिन तक जिस तरीके से हम पार्टी के मौक़िफ़ को, पार्टी के असूली मौक़िफ़ को हज़ारा कौम के अंदर घर घर तक हम पहुंचा रहे हैं, उससे भी ज्यादा इंशाअल्लाह ताला हम अपना किरदार इसके बाद भी अदा करते रहेंगे। दोस्तों, जिस तरह से अवध साहब ने कहा कि नेशनल पार्टी नेब का तसलसल है, बिल्कुल नेब का तसलसल है, जिसमें हर कौमियत के लोग यहाँ पर इस पार्टी में एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। तो वाकई इस इलेक्शन ने, इस कंसल्टेशन ने नेब की याद दिला दी। जिस तरह 1970 में नेब ने जिस तरह हज़ारा कौम को बैसद एक सेनेटर मुंतखब किया, आज उन्होंने मुझे बैसद एक सीसी मेंबर के भी उन्होंने वोट देकर मुझे कामयाब किया, जो मेरे लिए इफ्तिखार की बात है। दोस्तों, जमहूरियत वो पार्टियां जो बड़ी पार्टियां कहलाई जाती है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी या जमीयत को भी आप कह सकते हैं, उनका जमहूरी अंदाज आपने असेंबली में देखा कुछ दिन पहले, जिस तरह उन्होंने जिस अंदाज से, जिस गलत तरीके से उन्होंने जो पीटीआई को बैन करने की उन्होंने जो करारदाद लाई, जिसका हम भरपूर अंदाज में हम मजम्मत करते हैं। डॉक्टर साहब ने कहा, बकौल डॉक्टर साहब के भाई आपने नेब को और जमात इस्लामी को जिस तरह से आपने उस पर पाबंदी लगाई, तो उससे आपको क्या फायदा मिला? तो वो जमहूरी पार्टी कहने को तो पाकिस्तान में आजकल जमहूरियत है, लेकिन मैं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पर ना तो यहां पर कोई जमहूरियत है, मुकम्मल तौर पर सिविल मार्शल लॉ है। मैं तो हैरान हूं कि यहाँ के इदारे, यहाँ के एस्टेब्लिशमेंट, यहाँ की ये जो कहने को जमहूरी पार्टियां हैं, ये कब होश के नाखून लेंगे और कब तक इस आवाम के साथ, इस 25 करोड़ आवाम के साथ कब तक तुम लोग इस तरह तजुर्बा करते रहोगे? खुदारा होश के नाखून ले लो, वरना ये मुल्क आपके हाथ से निकल जाएगा। वो जिस किस्म के आपने बलूचिस्तान में हालात बनाए हैं जानबूझ करके, मैं तो यही कहूंगा कि जिस तरह से जो 75-77 सालों से पाकिस्तान में और बिलखुसूस बलूचिस्तान में जो आपने हालात पैदा किए हैं, इसका मतलब क्या है? आप नहीं चाहते हो कि यहाँ का आवाम, गरीब आवाम, यहाँ का जो महकूम अक़वाम है, वो उसमें खुशहाली, उसमें तरक्की है। आप जानबूझ करके तमाम मामलात को अपने हाथ में रखना चाहते हो ताकि यहाँ की आवाम पिसती रहे, यहाँ के आवाम जो है आपस में दिस से गिराबा हो। तो मोहतरम दोस्तों, जिस तरह से नेशनल पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि नेशनल पार्टी जमहूरियत पर, नेशनल पार्टी फेडरेशन पर, नेशनल पार्टी कानून की बालादस्ती, आइन की बालादस्ती पर यकीन रखती है, तो इंशाअल्लाह ताला हम आखिरी दम तक ये जो इस दफा इलेक्शन हुए, जिस तरह से तुमने नेशनल पार्टी के मैंडेट को चुराया, इंशाअल्लाह ताला हम आपको आगे दिखाएंगे कि हम इस तरह के तुम्हारे मुनफी हथकंडों से नहीं घबराने वाले, बल्कि अपने
सियासत को जमहूरी अंदाज में इंशाल्लाह हम आवाम के दिलों पर राज करेंगे और आवाम से भी हमारा ये तवक्को है कि वो नेशनल पार्टी को ज्वाइन करे और हमारे जितनी भी एक्टिविटीज में वो शरीक हो, ताकि हम उन कुव्वतों को बता सके कि आवाम नेशनल पार्टी के साथ है। तो दोस्तों, मैं एक बार फिर आज के तमाम मेहमानान गिरामी, तमाम इलाके के हमारे जो मुअज़्ज़िन हैं, मुतबरीन हैं, उन तमाम दोस्तों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और आखिर में एक बार फिर अपने नौमुंतखब ओहदेदारों को दिल की गहराइयों से मैं खुश आमदीद कहूँगा और उनको मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। बहुत शुक्रिया दोस्तों। में जिनका एक बहुत बड़ा मुकाम है, दोस्तों साथियों, अब हमारे ऊपर एक जिम्मेदारी आयद होती है नेशनल पार्टी के इस प्रोग्राम को हम बलूचिस्तान के तूल अर्थ में लेकर जाएं। हम तमाम सियासी वर्कर यहाँ बैठे हुए हैं। अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। जो हालात हैं, वाक़यात हैं, जो मुश्किलात हैं, एक तो यहाँ पे जिस तरीके से आइनी इंतशार है, माशी इंतशार है, सियासी इंतशार है, हर तरफ चीख है, पुकार है, हर तरफ जो है बर्बादी है, हर तरफ जो है जुल्म जबर नाइंसाफ़ी की इंतहा है। मैं समझता हूँ एज ए सियासी वर्कर कि अब हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इन हालात वाक़यात का मुकाबला कैसे हम करें। मैं एक सियासी वर्कर समझता हूँ कि हम नेशनल पार्टी के प्रोग्राम को, जो एक वाज़ेह प्रोग्राम है, हम सब इसको बलूचिस्तान के घर घर तक लेके जाएं। जब तक हम एक मुनज़्ज़म सियासी पार्टी की तरफ नहीं जाएंगे, उस वक्त तक इन मुश्किलात हालात का जो है मुकाबला हम नहीं कर सकेंगे। दोस्तों साथियों, जिस तरीके से यहाँ पे वो ज़ोरावर कुव्वतें ना यहाँ पे किसी निज़ाम को छोड़ते हैं, ना सियासी कल्चर को छोड़ते हैं, यहाँ पे हमेशा जो है जुल्म जबर नाइंसाफ़ी का जो निज़ाम है, एक सिलसिला जो है चलता आ रहा है 78 साल से। तो नेशनल पार्टी का एक वाज़ेह प्रोग्राम है हमारे और आपके लिए, सियासी वर्कर के लिए एक खूबसूरत प्रोग्राम है, एक खूबसूरत जो है प्लेटफॉर्म है। हम कह सकते हैं तमाम सियासी पार्टी हमारी काबिल एहतराम है, तमाम सियासी पार्टी के अकाबरीन हमारी काबिल एहतराम है, लेकिन हम जैसे सियासी वर्कर के लिए जो मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, जो एक सोच फिक्र रखते हैं, जो अवाम दोस्त कुव्वतें हैं, हम समझते हैं कि नेशनल पार्टी हमारे लिए जो है एक बेहतरीन जो है प्लेटफॉर्म है। हम मिसाल दे सकते हैं, हम अपने प्रोग्राम को लेकर जा सकते हैं। हालिया आपका कंसल्टेशन तमाम पाकिस्तान के तमाम सियासी पार्टीज के लिए एक बेहतरीन जो है रोल मॉडल है। जिस तरीके से तमाम सियासी वर्कर ने खूबसूरत तरीके से इलेक्शन में हिस्सा लिया और यहाँ के तमाम काउंसलर ने जिन पे एतमाद का इजहार किया, मैं समझता हूँ कि ये एक नेशनल पार्टी के जो कॉन्सल्टेशन था, ये तमाम सियासी वर्कर के लिए, पाकिस्तान की तमाम सियासी पार्टीज के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए एक बेहतरीन जो है रोल मॉडल है, एक बेहतरीन जो है मिसाल है। इस प्रोग्राम को हम आगे लेके जाएं। हमारे ऊपर जो है एक जिम्मेदारी जो आयद होती है, यहाँ पे नेशनल पार्टी जो है पूरे बलूचिस्तान की आवाम की जो है नुमाइंदा जमायत है। ग्वादर से लेकर हब तक, चाहे बलोच है, पश्तून है, चाहे सिंधी बोलने वाले हैं, सराकी बोलने वाले हैं, हमारे हज़ारा बिरादरी, हमारे आबादकार जो है, हम नेशनल पार्टी जो है सबके लिए जो है एक बेहतरीन खूबसूरत जो है ताकतवर जो है प्लेटफॉर्म है। हम सब जो हैं, आप मिसाल दे सकते हैं, आप इसको वहां पे, अब कौन डॉक्टर मालिक साहब कौन है, कौन से नवाब हैं, सरदार हैं, जो है ग्रास रूट लेवल से जो है मेहनत करके, आप कह सकते हैं मजदूरी करके जो है उन्होंने यहाँ पे जो है एक सियासी मुकाम हासिल किया। ये हम सब के लिए जो एक मिसाल है, ये हम सब के लिए जो है हमारे लिए भी काबिल फख्र है और इस बात को हम अवाम में भी ले कर जाएं। आज भी जो है हम समझते हैं कि बिल्कुल कि सियासी कुव्वत के साथ इस जुल्म जबर नाइंसाफ़ी के जो है खात्मे के लिए हम उस वक्त जो है जब इसका मुकाबला नहीं कर सकते जब तक हम मुनज़्ज़म जो है सियासी तौर पर अगर मुनज़्ज़म ना हो, अवामी ताकत जो है इस प्रोग्राम को घर घर पहुंचाएं, तमाम सियासी वर्कर, तमाम जो है सिविल सोसाइटी, तब जाकर जो है हमारी बात बनेगी, तब जाकर जो है हमारे जो सियासी अकाबरीन जो ये प्लेटफॉर्म हमें दी है, इसके लिए जो है जो हम जद्दोजहद कर रहे हैं बिल्कुल इसको उस वक्त तक ताकतवर बनाया जा सकता है जब हम आवाम को अपने साथ जोड़ें। 80% आवाम जो है जुल्म जबर नाइंसाफ़ी जो है उसके जो निज़ाम है, कातिल निज़ाम है जो है उसकी चक्की में हम पिस रहे हैं। क्या किया जाए? सिर्फ सोशल मीडिया से तो बात नहीं बनती। आज जो है
صرف ہر طرف جو ہے اگر ہم بات کریں صرف سوشل میڈیا میں جو ہے صرف ہم اظہار کرتے ہیں، لیکن اظہار سے حل نہیں ہوگا معاملہ، اظہار کرنے سے صرف حل نہیں ہوگا جب تک جو ہے ہم اس پروگرام کو پبلک میں نہ لے جائیں، جب تک اس کے لیے ہم جدوجہد نہ کریں۔ یہ جو طاقتور طبقہ ہے، یہ جو زوراور طبقہ ہے، یہ جو غیر جمہوری جو ہے طبقہ ہے، اس سے ہماری جان اس وقت تک چھوٹ نہیں جا سکتی جب تک ہم عوام کو شعوری بنیادوں پر جو ہے، سیاسی بنیادوں پر جو ہے ہم منظم نہیں کر سکیں۔ یہ جو طاقتور طبقہ ہے یہ ہمیشہ منت میں سے نہیں جائے گا۔ طاقتور جو طبقہ ہے یہ منت سے، میر سے، اگر ہم اس کی 100 قرآن بھی لیں، یہ جو ہے طاقتور طبقہ جو ہے یہ اپنی منمانی اس طرح نہیں چھوڑے گا۔ یہ طاقتور طبقہ جو ہے ہمیشہ دنیا کی تاریخ رہی ہے کہ ہمیشہ جدوجہد کے ساتھ طاقتور طبقہ کے جو ہے اس کو شکست اس وقت ہوتی ہے جب عوام جو ہے شعوری بنیادوں پہ جو ہے منظم ہو۔ جب کی تھی کہ اصل حاکم اور صوبائی اسمبلی میں پوری بلوچستان کی جو آواز بن کے قوموں کو نمائندگی جو برقرار رکھتے ہوئے جو جس طرح اتفاق اور یوالی، پشتو میں یوالی بولتے ہیں، تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور نئے کابینہ جو ڈاکٹر مالک صاحب مرکزی صدر اور دیگر جنرل سیکریٹری میر کبیر محمد شیخ صاحب صوبائی صدر، صوبائی کابینٹ، جس طرح یہ جو کنسلٹیشن ہوا ہے نئے مبارک کابینہ کو میں دل کے گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور انشاءاللہ تعالی اسی کابینہ کو، اسی قائدین کو کچھ لاکھ میں بھی انشاءاللہ لے جا کر اسی طرح ایک پروگرام رکھیں گے اور قوموں کو اور علاقے کو یہ بتا دیں گے کہ نیشنل پارٹی نیب کا نائب الوطن، نیب کا نائب البدل انشاءاللہ ایک دن ضرور بنے گی۔ اور یہ جس طرح ڈاکٹر رمضان ہزارہ صاحب نے کوشش جاری کیا ہوا ہے اور انشاءاللہ اسی تسلسل کو مرکزی ہم لوگوں نے ہزارہ ٹاؤن اور الیکشن میں سامنے آئے ہیں اور اس آئندہ بھی انشاءاللہ انٹرا پارٹی الیکشن میں نیشنل پارٹی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو نئے قیادت کو سامنے لانے میں بھرپور کردار ادا کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ نیشنل پارٹی نیب کے تسلسل ہے، جیسے حنیف کاکڑ نے کہا، واقعاً اسی طرح جمہوری، اسی طرح ڈیموکریٹک، اسی طرح ایک واقعی حقیقی سیاسی جماعت کی حیثیت کو برقرار رکھا ہے۔ تو ابھی ڈاکٹر رمضان ہزارہ نے ہزارے برادری اور ہزارہ کمیونٹی کو 2 گلیوں کے پارٹی سے نکال کر قومی دائرے میں شامل کیا، یعنی نیشنل پارٹی میں۔ تو دوستو یقیناً نیشنل پارٹی ایک گلدستہ ہے جس میں تمام اقوام کے لوگ شامل ہیں، اور میں مختصراً ڈاکٹر رمضان ہزارہ صاحب کو یہ ضرور کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں اور کوئٹہ سے تعلق رکھنے والے تمام لیڈرشپ کو ایک مشکل میں ڈال دیا۔ آئے روز آپ علمدار روڈ میں پروگرام کرتے ہو اور ہم سارے دوست خاموش ہیں، اپنے اپنے علاقوں میں نہ تنظیم سازی کرتے ہیں نہ ممبرشپ سازی کرتے ہیں۔ تو ڈاکٹر رمضان ہزارہ کو سے سبق سیکھتے ہوئے اس حال میں بیٹھے ہوئے مجھ سمیت ان تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ڈاکٹر رمضان ہزارہ کی طرح پارٹی کو ٹائم دیں، اپنی ممبرشپ کو بڑھائیں۔ اور ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کیچ اور پنجگور کے بعد کوئٹہ کی سطح پر ممبرشپ سب سے زیادہ ہزارہ کمیونٹی کی ہے، کیونکہ میں ممبرشپ کو دیکھتا ہوں تو ہر دن ڈاکٹر صاحب کا فون آتا ہے کہ حاجی صاحب آپ کہاں ہو، میں فارم لا رہا ہوں۔ مجھے تو ڈاکٹر صاحب رمضان ہزارہ صاحب نے تھکا دیا ہے اور میں اس پروگرام کے حوالے سے بھی اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں
کہ ضلع کوئٹہ میں نیشنل پارٹی میں سب سے زیادہ ممبرشپ ہزارہ کمیونٹی کی ہے. اور میں تقریب میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں. نیشنل پارٹی ایک جمہوری، آئینی، سیاسی اور نظریاتی سوچ رکھنے والی پارٹی ہے، جس کا ثبوت اکتوبر 2024 میں ہونے والے انٹرا پارٹی الیکشن ہے. کسی بھی جمہوری معاشرے میں ہر وہ سیاسی جماعت جو عام انتخابات میں حصہ لینے کی خواہش رکھتی ہوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے اپنی جماعت کے اندر جمہوریت کا ٹھوس ثبوت دے، یعنی اپنی پارٹی کے اندر شفاف اور منصفانہ انتخابات کرائے. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تحت ہر 4 سال بعد ہر سیاسی جماعت انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کی پابند ہے، خواہ صورتحال کچھ بھی ہو. کسی بھی سیاسی جماعت میں انٹرا پارٹی الیکشن جمہوریت، شفاف اور منصفانہ انتخابات اور نظریاتی سوچ کو فروغ دیتا ہے. جن سیاسی جماعتوں میں انٹرا پارٹی الیکشن ہوتے ہیں اور جب ایسی سیاسی جماعتیں برسر اقتدار آتی ہیں جو جمہوریت کو ہی فروغ دیتی ہیں، ایک نظریے کو پروان چڑھاتی ہیں. لیکن جب پارٹیوں میں ایسے اپنے اندر جمہوریت نہ ہو، وہ برسر اقتدار آنے کے بعد ملک میں کیا جمہوریت نافذ کر سکے گی؟ اور جب ایسی جماعتیں برسر اقتدار آتی ہیں، وہ بغیر کسی سیاسی، آئینی اور نظریاتی سوچ کی ہوتی ہیں، اور ایسی جماعتیں ایک گروہ کی شکل اختیار کرتی ہیں جو بعد میں مافیا کی شکل میں ہمارے سامنے آتی ہیں. لیکن نیشنل پارٹی میں ہمیشہ جمہوریت ایک سیاسی، آئینی اور نظریے کو فروغ دینے کی کوشش کرتی آ رہی ہے، اور اسی لیے ہر 3 سال بعد پارٹی کے اندر ہی انٹرا پارٹی الیکشن کرواتی ہیں. اس بار بھی ایک شفاف، منصفانہ انتخابات کروائی گئی، جس میں تمام ورکرز کو حصہ لینے کا موقع دیا گیا، اور ہزارہ قوم کی نمائندگی کو بھی نہایت خوش دلی اور سیاسی نظریاتی سوچ کے ساتھ پارٹی لیڈرشپ نے قبول کرتے ہوئے ڈاکٹر رمضان ہزارہ کی سربراہی میں ہزارہ قوم سے مجھ سمیت 6 کونسلران کو منتخب ہوئے، جن میں ڈاکٹر رمضان ہزارہ، عوض علی کشتمن صاحب، ذوالفقار علی صاحب، حاجی اصغر صاحب اور داؤد چنگیزی ہیں. اور یہاں میں پارٹی کی تمام مرکزی و صوبائی کونسلران کی فراخ دلی کو داد دیتی ہوں، جنہوں نے بلا کسی تعصب اور نسلی امتیاز سے بالاتر ہو کر سیاسی، جمہوری اور نیشنل پارٹی کی مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے ووٹ کے ذریعے نہایت شفاف اور منصفانہ طریقے سے ڈاکٹر رمضان ہزارہ کو سینٹرل کمیٹی کی ممبر بننے میں بھرپور طریقے سے اپنا کردار ادا کیا. نیشنل پارٹی ایک ایسی جمہوری پارٹی ہے جس نے صرف مرد حضرات کو بلکہ خواتین کی بھی ہمیشہ حوصلہ افزائی کی ہے، اور اسی انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے ہماری خواتین ونگ سے بھی عہدیداران ابھر کر سامنے آتی رہی ہیں، اور اس بار بھی آئی ہیں. نیشنل پارٹی کی نہایت اور بہترین اور مثبت سوچ ہے، جو خواتین کو سیاست کے میدان میں مسلسل آگے لانے کی کوشش کر رہی ہیں. اور امید کرتی ہوں کہ ایک باکردار، باصلاحیت اور مضبوط قیادت ڈاکٹر مالک بلوچ کی سربراہی میں انٹرا پارٹی الیکشن کے ذریعے جو نئی کابینیاں بنی ہیں، وہ بلا تفرق، بلا کسی تعصب اور بلا کسی اختلافات کے گھبرا اے عقاب، تندی باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. والسلام. اکٹھا کرے اور سیاسی طور پر اس کو منظم کرے اور اجتماعی طور پر اس کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ لائے تاکہ وہ اپنے اجتماعی حقوق کی تحفظ اور دوستوں، جس طرح دوستوں نے بات کیا، نیشنل پارٹی اس وقت گو کہ ایک صوبے کے حد تک عوامی قوت بن چکی ہے، لیکن فکری نظریاتی حوالے سے نیشنل پارٹی ایک عالمگیر سوچ رکھتی ہے. مجھے امید ہے کہ سیاسی کارکن، ترقی پسند نوجوان، ترقی پسند سوچ رکھنے والے لوگ ایک دن ضرور یہ محسوس کریں گے کہ اس ملک کے اندر عوامی طاقت پر یقین رکھنے والی کوئی سیاسی جماعت ہے،
आवाम को मुनज़्ज़म करने का किसी का अगर कोई पुख्ता इरादा है, वो सियासी जमात नेशनल पार्टी है। हम चूँकि इस मुल्क में इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल दौर और कठिन हालात से गुज़र रहे हैं। ये एक बहरानी दौर है, ये एक आमराना दौर है। इस दौर में यकीनन बहुत सारे मसाइल, बहुत सारे मुश्किलात हमें दरपेश होंगे, लेकिन सियासी सूझबूझ रखने वाले लोग कतन ऐसे माहौल से मायूस नहीं होते हैं। वो एक तारीख ज़रूर रकम करेंगे। दोस्तों, हम भी चाहते सामने जवाबदेह हो, जो अपने कारकुनों के सामने जवाबदेह हो, जो तारीख के सामने जवाबदेह हो। अगर हम देखते हैं तो मीर गौस बख्श बीजंजो से लेकर इससे कबल अगर हम खलात नेशनल पार्टी देखें, अब्दुल अजीज़ कुर्द, मीर गुल खान नसीर, एक बहुत लंबी जो है फहरिस्त है उन अकाबरीन की कि उन्होंने हमेशा हमेशा इस मुल्क को संवारने की बात की, इस मुल्क के इस्लाह की बात की। और उन्होंने कहा, देखो अगर रियासत को चलाना है तो रियासत के कुछ उसूल होते हैं, रियासत के कुछ पैमाने होते हैं, रियासत के कुछ कवानीन होते हैं। जंगल के कानून से मुल्क नहीं चलते, रियासतें नहीं चलती। और हम देख रहे हैं कि आज क्या हो रहा है। इन्होंने जैसे ज़िया-उल हक को उन्होंने कहा कि यहाँ पे आईन है, उन्होंने कहा आईन क्या है, 4 सफ़ों का कागज़ है, मैं उसको फाड़ के जो है अपने पाँव तले इसको रोनता हूँ। तो ये कर रहे हैं, प्रैक्टिकली कर रहे हैं। तो इस अंदाज में हमें समझते हैं कि जितने भी इस वक्त बहरान हैं, मुआशी बहरान है, महंगाई का बहरान है, सियासी अदम इस्तिकाम है, मुआशी अदम इस्तिकाम है, और आप पूरी दुनिया में जग इंसाई का बायस बन रहे हो इन्हीं हुक्मरानों की करतूतों की वजह से, इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से। हमने और आपने देखा। और फिर ये जो बलूचिस्तान असम्बली का एक नाम रहा है, बलूचिस्तान असम्बली का एक मुकाम रहा है, बलूचिस्तान असम्बली की सियासत में, लेजिस्लेशन में, कि जब पहली असम्बली जो थी तो उसका जो है वज़ीर आला सरदार अताउल्लाह मेंगल साहब थे, गवर्नर मीर गौस बख्श बीजंजो थे, उस असम्बली में मीर गुल खान नसीर जैसे लोग जो है वज़ीर थे। हम आप लोग जो है कभी जाएं, उनकी तकरीरें देखें, उनकी पॉलिसियां देखें कि उन्होंने वो बातें की। आज मैं तो हैरान होता हूँ, कभी कभार एंकर आज़ाद कहते हैं कि जनाब बलूचिस्तान में इसलिए तरक्की नहीं हो रही है कि वहाँ पे सरदार नहीं चढ़ते हैं, लेकिन हमारी तारीखें बताती है इसी बलूचिस्तान असम्बली में नेशनल अवामी पार्टी ने नैप ने सरदारी निज़ाम के खिलाफ करारदाद पास की। लेकिन आज इस असम्बली में क्या हो रहा है? इस असम्बली में एक करारदाद पेश किया जाता है कि सियासी पार्टियों पे पाबंदी लगा जाओ। शेम, इनको शर्म नहीं आती। डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की, और डॉक्टर साहब की ये बातें तारीख का हिस्सा है। आजकल सोशल मीडिया है, मैं देख रहा हूँ कि कितना वायरल हो गया है कि मत करो। साथ में लोगों ने तस्वीरें भी लगी हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुंह उनके खुले हैं, असरत भरी निगाहों से इमरान खान को देखते हैं और फिर उसके खिलाफ करारदाद भी पास करते हैं, और ये करेंगे। देखिए, इस वक्त बलूचिस्तान हम सब का है। हम इस पैगाम को एक एक कारकुन तक पहुंचाएं, हम बलूचिस्तान के पंजाबी तक पहुंचाएं कि जिसने अपनी ज़िंदगी यहीं पे गुजारी वो बलूचिस्तानी है, यहाँ का हज़ारा जो है वो बलूचिस्तानी है, यहाँ का पश्तून बलूचिस्तानी है, यहाँ पे जो दूसरे ज़ुबानें बोलते हैं लोग वो सब बलूचिस्तानी हैं और बलूचिस्तान के वारिस हैं। हमारी वरासत क्या है? आज उनकी नजर इधर ही लगी हुई है। इस खित्ते में जो कुछ होगा आने वाले दिनों में, पहले रूस और अमेरिका की जंग में इन्होंने अफगानिस्तान को ताराज किया, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं हुक्मरानों ने। और याद है कि जब मीर साहब को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में उसने बात की, उसने इन जनरलों को कहा
क्या आज यहाँ पे ख्वाब देख रहे हो कि हम काबुल फतेह करेंगे? मत करो। इस इंतहा पसंदी को, इस मजहबी इंतहा पसंदी को, इस जिहादी कल्चर को इतना फरोग मत दो कि जब ये जिन बोतल से बाहर निकलेगा तो आपका GHQ भी महफूज नहीं होगा। और हुआ यही, ये मीर साहब ने उनको बताया। आज फिर चीन और अमेरिका की लड़ाई में फिर मरकजियत जो है वो बलूचिस्तान है। इनके और मामला खत्म हो गए हैं। जो इंटरनेशनली उनको जो पैसे मिलते थे वो बहुत से खाते बंद हो गए हैं। अब सब कुछ चल रहा है किस पे? बिजली का बिल बढ़ाओ, गैस का बिल बढ़ाओ। फिर उनकी नजरें लगी हुई हैं रेको दिक पे, उनकी नजरें लगी हुई हैं बलूचिस्तान के वसाइल पे, उनकी नजरें लगी हुई हैं बलूचिस्तान के साहिल पे। इसको बचाने के लिए एक भरपूर मुजाहिमत की जरूरत है। जैसे खैरजाम बलोच ने कहा कि जमूर की मुजाहिमत। आज मैं कहता हूं कि ये जो गैस हमें नहीं मिल रहा है, लोड शेडिंग होता है, ये जुमायत यहाँ पे 20,000 लोग आप जमा करो, इनका बाप जो है लोड शेडिंग नहीं करेगा। क्यों लोड शेडिंग करते हो भाई? इस वक्त भी 15 से 16% जो है हमारा गैस का जो है प्रोडक्शन है, और हमारा सारा जो कंजप्शन इंडस्ट्रियल लोकल सब कुछ जो है वो 7% है। लेकिन 11 बजे गैस नहीं है। दूसरा हमारा गैस कहाँ जाता है? जब डॉक्टर मालिक साहब के दौर हुकूमत में जो एक यूनिट बनी थी, चीफ मिनिस्टर पॉलिसी रिफॉर्म्स यूनिट, वहाँ पे हमारे दोस्तों ने एक रिसर्च किया, उनके डेटा है, एनर्जी डिपार्टमेंट के अपने डेटाज हैं। उनके मुताबिक जो हमारे गैस को सब्सिडी कीमत में गैस खाद कंपनियों को दे रहे हैं, मार्केट वैल्यू से हमें कम पैसे मिले, 700 अरब रुपए फेडरल गवर्नमेंट हमारा मकरूज है। ये 2013 तक का डेटा है, उनके अपने रिकॉर्ड के मुताबिक। जो उन्होंने यहाँ पे चोरियाँ की हैं, चीज़ों को छुपाते हैं चोर। तो देखो दोस्तों और भाइयों, वक्त कम में मैं इस इख्तिसार के साथ बिलखसूस डॉक्टर रमज़ान और उसके साथियों को मैं कहता हूँ, भाई घर घर जाओ। कुछ दोस्त अगर हमसे नाला है, हम उनको भी खुश करें। सियासत में, पॉलिटिक्स में कुछ उसूल बहुत ज़रूरी है। बर्दाश्त, दूरअंदेशी, दोस्तों की इज्जत तो एहतराम, एक दूसरे को स्पेस देना, ये हमारे जो है उसूल है, ये हमारे अकाबरीन ने हमें दिए। मैं एक दिन बात कर रहा था, डॉक्टर साहब से बात हो रही थी। डॉक्टर साहब ने कहा कि मेरा अगर एक कारकुन तुर्बत में नाराज हो, मुझे रात को नींद नहीं आती डॉक्टर, मैं अगले दिन उसके पास जाता हूँ। हमें इस कल्चर को अपनाना है, बाहमी इज्जत तो एहतराम के कल्चर को अपनाना है। हमें पार्टी को वसत देना है। हम पार्टी को जितना वसत देंगे मेरी इतनी इज्जत होगी। हम पार्टी में जितने भी कैडर पैदा करेंगे हमारी इतनी इज्जत होगी। इस वक्त लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। हमारे सामने यहाँ पे आवागुल साहब बैठे हुए हैं, तकरीबन 20-23 किताबों का मुसन्निफ है, बहुत ज़बरदस्त जो है फिक्शन राइटर है। मैं कहता हूँ कि अगर फिक्शन में जो है मुजाहिमत और मोटिवेशन की जो उनसर मिलता है तो उनकी किताबों में मिलता है। उसने इस पार्टी को क्यों ज्वाइन किया? और भी पार्टियों की, इसलिए उसने परखा, देखा, एक जो है वैसे थे अदबी शख्सियत के, वो यहाँ पे आ गए। इस वक्त लोग हमारे उनकी नजरें हम पे लगी, इनसे कुछ नहीं होगा, इनसे कुछ नहीं होगा। जितनी तरक्की नेशनल अवामी पार्टी का बजट था, मैंने देखा उनका बजट, पहला बजट 16 करोड़ रुपए का था। उन्होंने कहा भाई 16 करोड़ में क्या करेंगे? फर्स्ट एजुकेशन, दूसरे लोगों को पानी देना है। यहाँ पे क्वेटा में पानी नहीं है, सड़कें तोड़ रहे हैं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इन्होंने ठेके पे दिया है, और ठेकेदारों को 4 अरब रुपए भी दिए हैं, सारे असासे भी दिए, गाड़ियाँ भी दिए, वर्कर्स भी इनको दिए, एडवांस में 4 अरब रुपए भी दिए उनको। तो इन सारे चीज़ों को अगर उठाते हैं तो हमारे दोस्त नेशनल असम्बली में उनको प्रोफेशनल में, नेशनल में, सेनेट में उठाएंगे। देखो डिफेंडर जो है वो पार्टी होते हैं, लोगों के हकूक़ के ज़ामिन होते हैं। तो आओ हम सब मिलकर नेशनल पार्टी को मुनज़्ज़म करें, उसको एक भरपूर अवामी क़ुव्वत और जुमायत बनाएं। फिर हम देखें कि हमारी नस्लों, आइंदा वाली नस्लों का मुस्तकबिल भी खुशहाल होगा और कौन हमारा छीनेगा। इन्हीं गुज़ारिशात के साथ आप सब दोस्तों का बहुत बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोस्तों, नेशनल पार्टी आज जो जिला मान रहे, मैं जो 1000 कौम के
मोतबरीन है, काहिदीन है, कारकुनान है। दोस्तों, जैसे साथियों ने कहा कि हमारी जो फिक्र है, हमारा जो सियासत है, हमारी जो जद्दोजहद है, हमारी जो कुर्बानियां है, वो सियासत बराए सियासत के कायल नहीं है, बल्कि सियासत बराए समाजी तब्दीली के कायल है। हम वो तब्दीली चाहते हैं जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में वहाँ के इंसानों को नसीब है, जो हमें नसीब नहीं है। इस वक्त हम एक ऐसी माशरे में रह रहे हैं जिसमें घुटन ही घुटन है, अंधेरा ही अंधेरा है, जिसमें मायूसी मायूसी है। लोग हर एक दूसरे से पूछते हैं कि इस मुल्क को यहाँ के जोरावर कुव्वतें कहाँ ले जा रही हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये 8 फरवरी के इलेक्शंस थे। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि ये बात मैंने हर जगह पे की है जहां मुझे फोरम कोई मिला है, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट की फोरम हो या जमहूरी फोरम हो। मैंने कहा इस दफा सबके साथ ज्यादती हुई, लेकिन जो ज्यादती हज़ारा कौम के साथ हुई वो शायद किसी और के साथ नहीं हुई। इस असेंबली में जो जब तक मैं यहां पे पार्लियामेंट में हूं, हज़ारा और हमारे पंजाबी कहें, दोस्त कहें या सेटलर कहें, उनकी नुमाइंदगी होती थी। ये वाहिद असेंबली है जहां दोनों अक़वाम की नुमाइंदगी नहीं है। ये मैं समझता हूं कि ये अवामी मैंडेट नहीं है, ये जोरावरी है, ये जोरावरी है। इसी तरह की जोरावरियां नेशनल पार्टी के साथ हुई। नेशनल पार्टी 10-12 सीटें सूबाई जीत रही थी, कम से कम कौमी 2 सीटें हम बिल्कुल क्लियर कट जीत रहे थे। अगर 2 होते तो शायद हमारा एक ख्वातीन भी आ जाती। लेकिन जो कुछ हमारे साथ हुआ वो आप दोस्तों ने देखा। कोटे के दोस्तों ने दिन रात मेहनत की, दिन रात ख्वारी की। बारकान के दोस्तों ने, कोलू के दोस्तों ने, जालावान सरावान के दोस्तों ने, नसीराबाद कच्ची के दोस्तों ने। लेकिन मैं कहता हूं कि हम उस वक्त उस दौर से गुजर रहे हैं जो किसी जमाने में यूरोप और लातीनी अमेरिका और अमेरिका में गुलामों को और खवातीन को वोट का हक नहीं था। ये पाकिस्तान के अवाम का हुक छीना गया है और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के अवाम का हक छीना गया है और उसको ऑक्शन किया गया है, उसको बेचा गया है। जो लोग पार्लियामेंट में है वो अवाम के हकीकी नुमाइंदे नहीं हैं। हकीकी नुमाइंदे वही थे जिनको अवाम ने वोट दी, जिनको हम और आप बखूबी जानते हैं। तो दोस्तों, इन तमाम मुश्किलात का हल एक मुनज़्ज़म सियासी मुज़ाहमती जद्दोजहद है। हम कोई बंदूक बरदार फौज के हक में नहीं है। हमारे वो कायदीन है जो अदम तशद्दुद के पैरोकार थे, चाहे वो
बादशाह खान की शिक्ल में हो, चाहे वो मीर गौस बख्श बिजंजो और अब्दुल अजीज खुद की शिक्ल में हो, हम आज भी समझते हैं कि सियासी जद्दोजहद से ही तब्दीलियां आ सकती हैं। हम बलूचिस्तान के हालात को देखकर इंतहाई दुख होती है कि ना यहाँ पे पार्लियामेंट की बालादस्ती है, ना यहाँ अदलिया आजाद है। अब तो हाल ये है कि किसी असिस्टेंट कमिश्नर की भी तकर्रुरी और प्रोमोशन उसको भी इस्टेब्लिशमेंट ने अपने हाथों में ले लिया है। ये हुकूमत मुकम्मल तौर पर चाहे मरकजी हो या सूबों की हो, वो यरगमाल है, उनमें कोई जो है ना ताकत नहीं है। मैं 88 से कभी इस पार्लियामेंट में हूँ, कभी नहीं हूँ, ये मेरा 5वां दफा है यहाँ पे, लेकिन इस तरह का पार्लियामेंट जो बेरूह है, इसमें रूह नहीं है, पहले कभी नहीं था। बलूचिस्तान के पार्लियामेंट के अपनी रवायतें थी। जालिमों के खिलाफ पहला आवाज बलूचिस्तान से उठता था, चाहे वो अयूब खान होता, ज़ियाउल हक होता या मुशर्रफ। लेकिन इस तरह लगता है कि हमारी पार्लियामेंट को सांप सूंघ गया है। हर एक अपनी खैरियत में लगे हुए हैं। नेशनल पार्टी आप तमाम दोस्तों से ये वादा करता है कि हज़ारा कौम का हर मसला नेशनल पार्टी का मसला है। काश के ये हमारी मैंडेट नहीं छीनते, काश के 10-12 लोग हमारी इस गवर्नमेंट में होते, तो फिर हम यकीनन अमलन ये दिखाते थे कि हम बलूचिस्तान के तमाम अक़वाम, तमाम मजहब के लोगों के एहतराम करते हैं। आज जो आप लोगों के साथ पिछले कई सालों से हो रहा है, या बलूच और पख्तून के साथ हो रहा है, पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जितने खून गिरे हैं, कभी मजहब के नाम पे, कभी इंतहा पसंदी के नाम पे, उसका बेहतरीन गवाह मौर आप हैं। हज़ारा कौम ने कितनी लाशें उठाई हैं। मैं आपके जज्बात को उबारना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो कुव्वतें हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तिकाम का शिकार किया हुआ है, चाहे वो माशी तौर पर हो, चाहे वो सियासी तौर पर हो, चाहे वो समाजी तौर पर हो। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जीत अवाम की होगी। दुनिया की तमाम तहरीकों को आप देखें, जितने जोरावर थे, आखिर में वो जोरावर नहीं रहे। अवाम की जद्दोजहद से वो जोरावर ख़त्म हो गए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि नेशनल पार्टी इंसानियत की जंग लड़ेगी, अमन और मोहब्बत की जंग लड़ेगी, माशी और सियासी इस्तेकाम की जंग लड़ेगी, बलूचिस्तान में भाईचारे की जंग लड़ेगी, और उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हम बलूचिस्तान के बुनियादी हुकूक को लेने में कामयाब नहीं होंगे और अपने अवाम को हर वो सहूलत देने के लिए काबिल नहीं होंगे जो उनकी ज़रूरत हो, चाहे उनका रोज़गार हो, चाहे उनका अमन हो, चाहे उनकी तालीम और सेहत के जो है ना मसले हों। ये हमारी प्रायोरिटी होगी। मैं अपने
हज़ारा टाउन, अलंदर टाउन और ख़ास तौर पर अपना कायद डॉक्टर रमज़ान साहब और उनके कुलीग के, ख़वातीन के और पीछे बैठी हुई हैं मेरी बेटियां और बहनों की मैं सबका मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमारी कायदीन को आज इज़्ज़त दी। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दें और हमें ये तौफीक दें कि हम हज़ारा कौम के शाना बशाना हो के उसके हुकूक को लिए लड़ें। नेशनल पार्टी जिंदाबाद। दोस्ताई पार्टी व चेयरमैन राष्ट्रीय मोहतरम शाहिद हज़ारा साहब ये हज़ारगी चपन जिसको हज़ारगी में चपन बोलते हैं मुगल के चेयरमैन नादिर हज़ारा साहब हमारे भाई को पहना रहे चपन हज़ारगी। ये सर्दियों ये हमारे कल्चर का हिस्सा है और हज़ारा कौम की शान है। हज़ारगी कोला कोले बच्ची को बोलते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। ये नमाज है हज़ारगी नमाज जो बहुत पसंद से बड़े होते हैं। पानी के ऊपर भी रखते ना नमी हो पानी। ये ज़रीफ लोगों के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इस पर सोने के लिए और बैठने के लिए, ये सेहत के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। हज़ारगी नमाज मुकम्मल पसंद से बने हुए। शुक्रिया। मेरे लोग छोटे बच्चे डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से गिफ्ट पाकिर जमान मुसल्लिम सानी एक पोर्ट्रेट डॉक्टर साहब को पेश करना चाहिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, जैसे आपको मालूम है कि बलूचिस्तान में इससे पहले इलेक्शन में हज़ारा कौम ने 2 सीटें जीती थी। इससे ज़ाहिर होता है हज़ारा कौम का 9 सीट होती है कोयटा सिटी में, तो 9 में से हज़ारा जीती थी। तो इससे ज़ाहिर होती है अक्सरियत हज़ारे का शुमार होती है कोयटा शहर में। और हमेशा हज़ारा कौम का हक़ूक़ जो है नहीं दिया जाता है तालीमी हवाले से। जैसे बोलान मेडिकल कॉलेज में सीटें तकसीम होती है, उसमें हमारे स्टूडेंट हज़ारा जो है मेडिकल उनको नहीं दिया जाता है सीटें। हर हवाले से इस बदकिस्मती से इस दफ़ा तो पूरी बलूचिस्तान का मैंडेट छीना गया है। नेशनल पार्टी का भी काफ़ी मैंडेट छीना गया है। तो कल को इंशाल्लाह आप सीएम बलूचिस्तान बनोगे तो तालीमी हवाले से, रोज़गार हवाले से हज़ारा कौम के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है? शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ जी। इसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग 88 से इस पार्लियामेंट में हैं, कभी हैं कभी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर हम रहे हैं इस पार्लियामेंट में। अमूमन जो है ना यहाँ हज़ारा कौम की जो है ना जी वो हुई है, नुमाइंदगी हुई है। और उन लोगों ने कभी डेमोक्रेट्स थे, कभी मजहबी लोग थे, लेकिन तय ज़रूर बदकिस्मती से इस दफ़ा हज़ारा कौम के दोनों सीटों पे जी उन पे डाका डाला गया, उनको बेचा गया। और मैं समझता हूँ कि हज़ारा कौम के साथ बहुत ज़्यादती हुई, जिसको नुमाइंदगी की हक़ से महरूम किया गया। आज भी हमारी ख्वाहिश है कि हज़ारा कौम अपने नुमाइंदों को असम्बली में भेजें ताकि उनके मुश्किलात का वो अजाला कर सके। बाकी रही हमारी बात, हमारी तो कोशिश है कि हम तमाम बलूचिस्तान की खिदमत करें, लेकिन चूँकि हज़ारा कौम के लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए, तो हमारी प्रायोरिटी इंशाल्लाह हज़ारा कौम के लोग होंगे जिनके हम तालीमी या उनके रोज़गार के, उनके पासपोर्ट के, उनके शनाख्ती कार्ड के, इन तमाम मसलों पे हम तवज्जो दे दें, उनको हल करने की कोशिश करें। शुक्रिया जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया।